Good morning. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So, welcome to this channel of knowledge and wisdom. On this channel, I have placed a lot of video on banking, finance, and economics. And whenever new development comes, we post a video in simple language. So, reciprocal tariffs. This is a word. This has come into news due to India-US talks. Now, how it will affect India and what is the meaning of this word? Reciprocal tariff means that between two countries, for the same goods, the percentage of tariff will be same. In simple language, we can understand if we are imposing 10% import duty on cars from America, the America will also charge 10% on cars exported from India to US. That means both countries will charge same rate of duty when trade happens between these two countries. That means when India levies some import duty on a certain item of US will also charge the same. How it affects India? Because if we look at trade between India and US, at present we are having trade surplus with US. Although overall India is a trade deficit country. But as far as US is concerned, with US our trade surplus was, as per last available data, was $45.7 billion. And if it becomes equal, that means the trade surplus that we are having due to US will adversely affect our overall trade balance because we are in deficit in trade with other countries. So what will it mean? That means the trade from other countries will shift to trade with US. Either we have to import more from US or we have to reduce our exports to US to have a equal level of trade with US. And that's why it affects some companies in India and it gives boost to some companies in US. The companies, those are unable to sell their goods in India, will be able to reduce their goods in India due to lower tariff that India may be forced to levy to ensure that some of the goods from India moves to US. So this dynamics is going to change flow of dollars from India to abroad and from abroad to India, and it is likely to affect tremendously as far as Indian economy is concerned. The real impact will be seen when these tariff rates will be announced by both the countries. So the only thing is that at a conceptual part, now US has decided there will be no more concession to India. So if India charges high tariff on cars, bikes or wines or some other goods from US will also charge the very high tariff on Indian goods moving to US, and let's see how does it affect. At present, it is seen that country which is in trade surplus is naturally is likely to be affected because US is trying to balance their trade surplus or trade deficit with various countries. So India being a country which is exporting a lot of goods to US is definitely going to be affected, but the level of effect we will only come to know in coming days. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. इस चैनल जो कि नॉलेज और विजडम का चैनल है, इस पे आपका स्वागत है और इस पे बहुत सारी वीडियोस हमने डाली हुई हैं जो बैंकिंग, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स पे है और उसकी पूरी प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है.
समय समय पर जो नई घटनाएं घटती हैं इकोनॉमिक वर्ल्ड से संबंधित, बैंकिंग से संबंधित, उसकी भी चर्चा हम इस चैनल पर करते हैं। अभी एक शब्द आया है, रेसिप्रोकल टैरिफ। ये है क्या? इसको अगर हम सिंपल शब्दों में जानने की कोशिश करें तो ये एक ऐसा टैरिफ है जो दो देशों के बीच होने वाले व्यापार पे निर्भर करता है। मान लीजिए भारत से जो कार है वो यूएस को जाती है और यूएस से कार इंडिया में आती है इंपोर्ट होके। तो यदि हमारी ड्यूटी 10% है इंपोर्ट पे, इंपोर्ट ऑफ कार पे, तो जो हमारी कार यूएस में जाएंगी उस पर भी 10% वहाँ पर टैरिफ लगेगा। मींस अगर आज हम बहुत अधिक टैरिफ किसी कमोडिटी पे चार्ज कर रहे हैं जो यूएस से आ रही है, तो यूएस भी हमारी उसी कमोडिटी पे हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट से टैरिफ लगाएगा। अब इसका इफेक्ट क्या होगा? अब ये तो इक्वलाइजेशन हो गया, देखने में लगता है कि ये फेयर है, मगर कौन से कंट्री अफेक्ट होंगे? अब जैसे भारत है, भारत का यूएस के साथ ट्रेड सरप्लस है। मींस हम यूएस को ज़्यादा गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं और कम गुड्स इंपोर्ट करते हैं। ओवरऑल इंडिया ट्रेड डिफिशिट कंट्री है। अन्य देशों से हमारे कंपलसरी इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो इसमें होता क्या कि हमारे यूएस के साथ, मान लीजिए जो लास्ट अवेलेबल डेटा है वो कहता है कि $45.7 बिलियन का सरप्लस है। तो यदि ये इक्वल हो जाएगा तो नेचुरल है ये ट्रेड सरप्लस जो एक पर्टिकुलर कंट्री से वो घट जाएगा या इक्वल आ जाएगा। तो जो हमारा ओवरऑल ट्रेड डिफिशिट है वो बढ़ सकता है या शिफ्ट हो जाएगा ये हमारा ट्रेड, दूसरे कंट्री से हम इंपोर्ट बंद कर देंगे और हमें यूएस से इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ें हैं इसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या आता है इंडिया पे, ये आने वाले वक्त में ही पता लगेगा। मगर डेफिनेटली अगर हम एक ऐसे कंट्री के साथ अचानक हमारी चेंजेस आती हैं जहां हमारा सरप्लस है, तो कुछ ना कुछ सेटबैक हमें लगेगा। अगर यूएस कोई पॉलिसी बना रहा है तो वो अपने फ़ायदे के लिए बना रहा है। तो जब जिस ट्रेड के जो नए रूल्स होंगे उसमें अगर यूएस को फ़ायदा होना है तो नेचुरल है किसी को नुकसान होना है, क्योंकि दोनों को फ़ायदा नहीं हो सकता। अगर वो अपने इंपोर्ट्स इंडिया से घटाते हैं तो डेफिनेटली इसका मतलब है हमारे एक्सपोर्ट घटेंगे, और अगर वो अपने ज़्यादा गुड्स हमारे यहाँ एक्सपोर्ट कर पाते हैं और हमारा इंपोर्ट बढ़ता है यूएस के साथ, तो नेचुरल है किसी ना किसी इंडस्ट्री को उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। क्योंकि जो गुड्स की सेल है इंपोर्टेड, अगर सप्लाई बढ़ जाएगी किसी पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर, तो वो डोमेस्टिक जो गुड्स बनाने वाली कंपनी है उसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट डाल सकती है। इसलिए इसका ओवरऑल भारतीय इकोनॉमी पे क्या इफ़ेक्ट होगा ये आने वाले दिनों में पता लगेगा। मगर जो इमीडिएट रिस्पांस है वो यही है कि नेचुरल है कि कुछ कंपनीज़ को इसमें नुकसान हो सकता है, और भारत के जो ट्रेड डिफिसिट की मैनेजमेंट है वो और जटिल हो सकती है। पर जैसे जैसे इसके बारे में और हमें जानकारी होगी हम उस पर चर्चा करेंगे। पर अभी जो एज ए कंसेप्चुअल कंसेप्ट है वो है दोनों रेट्स का सेम होना ऑन ए पर्टिकुलर गुड। अगर कार पे हम जो रेट लगाएंगे इंपोर्ट ड्यूटी वही हमारी कार पे लगाएंगे, वाइन पे जो हम लगाएंगे वही वाइन पे लगाएंगे, वही गारमेंट्स पे लगाएंगे, सेम वो लगाएंगे। मीन्स जो जो आइटम्स ज़्यादा आती हैं, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ गुड्स ऐसी हैं जो यूएस के इंडिया में आती हैं और उनके ऊपर बहुत हाई टैरिफ है इस समय, मगर सिमिलर गुड्स जो हमारी यूएस में जाती हैं यूएस में उतना हाई टैरिफ नहीं है उनके ऊपर। तो जब वो इक्वल हो जाएगा तो ट्रेड के अंदर तो कोई ना कोई ज़रूर फ़र्क आएगा। तो ये थ्योरेटिकल एंगल से मैंने डाला है, क्योंकि जैसे जैसे चीज़ें इमर्ज होंगी तभी हमें ज़्यादा इसके बारे में क्लैरिटी होगी। गॉड ब्लेस यू ऑल।